ओम शांति। આજે તારીખ 8 જૂન 2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો। મીઠે સેન્સ્યુબલ બચ્ચે। આજે બાબા કેવા બાળકોને યાદ કરે છે? જે સેન્સિબલ છે, સિન્સિયર છે, એવા બાળકોને બાબા યાદ કરે છે કે મીઠે सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम आत्मा अविनाशी हैं। શું યાદ રાખવાનું છે? આપણે કેવા છે? તો આપણે अविनाशी आत्मा છીએ। हमें अब बाप के साथ पहले तबके फ्लोर में जाना। तबके माना फ्लोर। तो बाबा કહે છે એ યાદ રાખો કે આપણી આત્મા અવિનાશી છે અને હવે બાબાની સાથે પહેલા માળે, પહેલો ફ્લોર માના પહેલો માળ, પહેલો તબકો। તો પહેલો માળ કયો? તો આજે બાબાએ મુરલીમાં 3 માળની વાત કરી છે। તો સૌથી ઉપરનો માળ છે પરમધામ, એને બાબાએ પહેલો માળ કહ્યો। બીજો માળ સૂક્ષ્મ વતન અને ત્રીજું આ સ્થૂલ લોક કે જ્યાં શરીરધારી આપણે મનુષ્ય આત્માઓ રહીએ છીએ। તો હવે બાબાની સાથે પરમધામ જવાનું છે પહેલા માળે। તો એ યાદ રાખો। प्रश्न, कौन सी मेहनत तुम हरेक बच्चे को अवश्य करनी है? આજે બાબા કઈ મહેનત કરાવે છે? તો બાબા કહે છે એવી કઈ મહેનત છે કે જે હરેક મનુષ્ય આત્માઓએ અવશ્ય કરવાની છે? उत्तर, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हरेक को करनी है। बाबा कई मेहनत करावे छे આજે કે બાબા જે જ્ઞાન આપે છે એ જ્ઞાનને દિલ સાથે લગાવી દો અને અંદરો અંદર એટલું મનન કરો એ જ્ઞાનનું કે એ જ્ઞાન પૂરેપૂરું આપણી અંદર પચી જવું જોઈએ અને પચી જશે તો શક્તિ મળશે। આ મહેનત બાબા કહે છે ચોક્કસથી કરો। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। કારણ કે જેની અંદર જ્ઞાનનું મનન ચિંતન ચાલતું રહે છે તો એને અંદરો અંદર નશો હોય છે કે આપણને જ્ઞાન આપવાવાળું કોણ છે, હમ કિસકે સામને બેઠે। એટલા માટે બાબા ઘણીવાર મુરલીમાં કહેતા હોય છે કે મનન કરો, મનન શક્તિને વધારો। વચ્ચે બી બાબાએ એકવાર અવ્યક્ત મુરલી ચલાવી કે ખાલી જ્ઞાન સાંભળવા પૂરતું નથી પરંતુ જ્ઞાનનું મનન ચિંતન કરો અને જેટલું મનન ચિંતન કરીને અન્ય નવી નવી પોઈન્ટ્સ કાઢો અને એ જે નવી જ્ઞાનની પોઈન્ટ્સ નીકળશે તો એ આપણા માટે શું બની રહે છે? આપણી પોતાની પ્રોપર્ટી બની રહે છે। તો એ રીતે બાબા કહે છે મનન ચિંતન કરતા રહો અને જે મનન કરે છે એને નશો હોય છે કે આપણને જ્ઞાન કોણ આપી રહ્યું છે, આપણે કોની સામે બેઠા છીએ। ओम शांति। ओम शांति यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते 2 बार ओम शांति किसने कहा? कौने कहूँ ओम शांति? एक शिव बाबा ने कहा तो एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। 2 बार ओम शांति बाबा बोल्या तो एमाथी एक बार शिव बाबा तो एक बार ब्रह्मा बाबा। यह बाप दादा इकट्ठे हैं કારણ કે શિવ બાબાનું અવતરણ થાય તો બ્રહ્મા તનની અંદર શિવ બાબા બી હોય છે તો બ્રહ્મા બાબાની આત્મા બી હોય છે તો दोनों को बोलना पड़े ओम शांति। ओम शांति अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा?
પહેલા તો બાબાએ પાક્કું કરાવ્યું કે 2 વાર ઓમ શાંતિ જે બોલે, એક શિવ બાબા બોલે અને એક બ્રહ્મા બાબા બોલે. પાછું બાબા પૂછે છે કે પહેલા કોને કહ્યું હશે ને પછી કોને કહ્યું? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ. पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने. पहला शिव बाबा कहते ओम शांति, પછી ब्रह्मा बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति. मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह અભિમાન में नहीं आता. બાબા બાળકોને યાદ અપાવે છે ઓમ શાંતિ. તો બાબા કેમ બાળકોને યાદ અપાવે છે ઓમ શાંતિ? કારણ કે બાબાના બાળકો દેહ અભિમાનમાં આવે છે. શરીર ધારણ છે, શરીરની અંદર નિવાસ કરે છે આત્મા, તો ઘડી ઘડી દેહ અભિમાન આવી જાય છે. બાબા કહે છે હું તો સદૈવ દેહી અભિમાની છું. તો તમે દેહ અભિમાની બની જાઓ છો, માટે ઘડી ઘડી યાદ કરાવવું પડે છે કે તમે ઓરિજિનલમાં શું છો. तो एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं. ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे. एक शिव बाबा છે કે જે સદૈવ આત્મ અભિમાની સ્થિતિમાં હોય છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર બી આ રીતે કહેવાય નહીં, કારણ કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર બી સૂક્ષ્મ શરીરધારી છે. तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है. तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है. तो ओम शांति कौन करे छे? शिव बाबा के जेमने कोई शरीर नहीं. बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ. बाबा શું સમજાવે છે કે હું આ સૃષ્ટિ પર એકવાર આવું છું અને હું સદૈવ આત્મ અભિમાની છું. मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा ही न्यारी है. બાબા જન્મ પુનર્જન્મમાં નથી આવતા, માટે બાબાની મહિમા ન્યારી, દિવ્ય, अलौकिक છે. मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा. भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा. ભક્તિમાં બી શિવના માટે શું કહેવાય છે? નિરાકાર પરમ પિતા પરમાત્મા. તો એવી રીતે જ્ઞાનમાં બી કહે છે નિરાકાર परम पिता परमात्मा. निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं. માટે સદૈવ કોની પૂજા કરવામાં આવે છે? નિરાકારની. કારણ કે નિરાકાર ક્યારે देह अभिमान में आवता नहीं. अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में. पहला निराकार नी बात करी तो निराकार क्याना रहवासी छे? परमधामना. तो बाबा के छे हवे नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं. शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता. शिवनु નામ બી લોકોને ખબર નથી. ખાલી જ્યોતિબિંદુ શિવ કહી દે છે, પરંતુ એમનું ઓરિજિનલ રૂપ કેવું છે કોઈ જાણતું નથી. चित्र बनते हैं लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं. पूजा भी निराकार की ही होती है. पूजा भी कोनी थाय छे? एक निराकारनी. तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है. भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है. तुम जानते हो
सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र की। काले बी बाबाए કહ્યું હતું ને કે સતયુગના દેવી દેવતાઓ કોઈ પૂજ્ય નથી, કારણ કે પૂજારી બનતા નથી, કારણ કે પૂજારી એ સમય સતયુગમાં થોડી હોય, કારણ કે સતયુગમાં એમને કોઈની પૂજા કરવાની જરૂરત જ નથી પડતી। તો બાબા કહે છે સતયુગના દેવી દેવતાઓ ન કોઈ ચિત્રની પૂજા કરે છે ન કોઈ વિચિત્રની, કે નથી કોઈ શિવની પૂજા કરતા કે નથી કોઈ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। परम पिता परमात्मा केवा छे? विचित्र, के जेमनु नथी सूक्ष्म काया कि नथी स्थूल काया। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। परमात्मानी महिमा कई छे? दुख हरता सुख करता पतित पावन। तमारा कोईना चित्रों ने पतित पावन कहवाय नहीं, माना कोई देवी देवताओं चित्रों ने भी पतित पावन न कहवाय। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। पहला तबका फिर दूसरा तबका, तबका माना फ्लोर माना मंजिल, ऊंचते ऊंच है मूल वतन। उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। माना पहली मंजिल, तबका माना पहली मंजिल, तो ऊंचा में ऊंची मंजिल कई छे? निराकार परम पिता परमात्मानी जे दुनिया छे परमधाम, मूल वतन के ज्यां परमात्मा निवास करे छे। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं और थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी। समझ में आवी बात कि ऊपर पहला मंजिल में छे शिव बाबा के ज्यां निराकारी आत्माओं निवास करे छे। बीजा तबका में छे सूक्ष्म वतन के ज्यां सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं निवास करे छे, अने नीचे त्रीजा तबका में स्थूल शरीरधारी। इसमें मूंझना नहीं है। यह बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ऊपर कई दुनिया छे? निराकारी दुनिया, के जेने इंग्लिश में कहवाय इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है। इनकॉर्पोरियल माना निराकारी, कॉर्पोरियल माना साकारी। तो परमधाम में निराकारी आत्माओं निवास करे छे, तो परमधाम थी स्थूल वतन में आवीए छे अने साकार शरीर धारण करीए छे। वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीव आत्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाप के बच्चे हैं। बुद्धि में शुं राखवानुं छे? आपणे कोना बाळको छीए? तो निराकारी बापना। हम भी पहले निराकारी बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पार्ट बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, यह नशा होना चाहिए। पहला आपणे क्या था? परमधाम में, के जे निराकारी बाबानी दुनिया छे, तो निराकार बाबानी पासे हता। परंतु त्यांथी आ सृष्टि पर आवीए छे पार्ट भजववा माटे साकार में। तो निराकार हो गया बाप का वतन। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए।
विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। बाबा કહે છે નશો રાખો તો અવિનાશી વસ્તુનો રાખો, વિનાશીનો રાખીને શું મતલબ? જેનો વિનાશ જ થઈ જવાનો છે। તો અવિનાशी तो एक आत्मा છે। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्मा अभिमानी अच्छे? कया सारा? देह अभिमानी आत्माओं सारी के आत्मा अभिमानी? सेंसिबल कौन છે? आत्मा अभिमानी के देह अभिमानी? बाबा पूछी रहा છે। तो आत्मा अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा केवी छे? अजर अमर अविनाशी छे, જ્યારે આ શરીર તો विनाशी काया छे। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं, हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, वहां से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा। आत्मा कोने याद करे छे? निराकार बाबाने, कारण के निराकारी आत्मा परमात्मानी साथे परमधाममां रहेवावाળી છે, પરંતુ સૃષ્ટિ પર આવે છે, શરીર ધારણ કરે છે, 84 अलग अलग शरीर धारण करे छे। निराकारी सृष्टि में है निराकारी बाबा और साकारी सृष्टि में साकारी बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहराना। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। परमधामમાં આપણે કેવા છીએ? હરેક આત્માઓ એક બાપના બાળકો ભાઈ ભાઈ છીએ। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है शालिग्राम। परमात्माનું નામ શું છે? शिव અને આત્માનું નામ शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। कई मेहनत करो? जे बाबा ज्ञान आपे छे तो ए ज्ञान दिलમાં લગાવવાનું છે કે જે બાબાની વાતો છે દિલમાં યાદ રહેવી જોઈએ। એ દિલથી બાબા વાત કરી રહ્યા છે તો આપણા દિલમાં ઉતરી જવી જોઈએ। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। पहला पहला कयो निश्चय करवानो छे कि આપણે કોની સાથે રહેવાવાળા છે? तो एक परमात्मानी साथे रहवावाळा છીએ। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो जो यह आत्माओं का जाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है। कारण के जाड़ तो पछी बने न, पहला कौन होय? पहला बीज होय। बीज उगाड़िए तो पछी झाड़नी वृद्धि थाय। तो जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते हैं। 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। જેવી રીતે સૃષ્ટિ પર જોઈએ ને કે જેમ એક પિતા હોય તો પિતાના 2 બાળક હોય તો પછી એમના એ બાળકો થાય તો એક વંશાવલી વધતી જતી હોય ને એક વૃક્ષ સમાન એ વંશાવલી થતી જતી હોય। તો જેવી રીતે ઝાડ મોટું થતું જાય છે તો बिरादरी का नक्शा होता है। फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। उनका भी चित्र है। ऊंच से ऊंच है बाप,
પરમધામમાં કોણ રહે છે? સર્વ મનુષ્ય આત્માઓ પરમધામના નિવાસી છે. તો બાબા કહે છે કે ત્યાં તમે મારી સાથે રહો છો. તો ऊंचा ते ऊंचा परम पिता परमात्मा છે. तुम बच्चों की बुद्धि में है. बाबा इस शरीर में आया हुआ है. रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं. सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे. सतयुग में यह नॉलेज किसी को भी रहती नहीं है. बाबा કહે છે આ જ્ઞાન તો સૂક્ષ્મ વતનમાં भी હું નહીં આપું કે સતયુગમાં આ જ્ઞાનની દરકાર भी નથી હોતી. बाप ही इस संगम पर आकर यह नॉलेज देते हैं. તો બાબા ક્યાં આવીને જ્ઞાન આપે છે? તો આ સંગમ યુગમાં આવીને બાબા જ્ઞાન આપે છે. इस मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं. कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है. કારણ કે સૃષ્ટિ રૂપી ઝાડનું જ્ઞાન જ નથી માટે કલ્પની આયુ કેટલી લખી દીધી છે. કોઈ લાખો વર્ષ કહે છે, કોઈ કરોડો વર્ષ કહે છે. તો અભી બાપ तुमको समझाते हैं बच्चे, अभी तुमको फिर घर चलना है. ક્યાં જવાનું છે? अब घर चलना है. અત્યારે મમ્માનો જૂન મહિનો ચાલી રહ્યો છે ને, તો મમ્માનો કયો મહામંત્ર હતો? अब घर जाना है, अब घर जाना है. तो बाबा कहते बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है. वह है आत्माओं का घर. बाप और बच्चे रहते हैं सब ब्रदर से. परमधाम છે આત્માઓનું ઘર કે જ્યાં આપણી આત્માઓના પિતા અને સર્વ મનુષ્ય આત્માઓ નિવાસ કરે છે. તો ત્યાં આત્મિક સ્થિતિમાં હરેક હોય છે, આત્મા સ્વરૂપે હોય છે. તો બધા ભાઈ ભાઈ છે. ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं. જ્યાં સુધી આત્મા છીએ ત્યાં સુધી તો ભાઈ ભાઈ, જ્યારે શરીર ધારણ કરીએ તો ભાઈ બहन. हम आत्माएं सब भाई भाई हैं. भाई का जरूर बाप भी होगा ना. वह है परम पिता परमात्मा. अपनी आत्माओं पिता कौन से? तो परम पिता परमात्मा. सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं. सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते. पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं क्योंकि सब रावण की जेल में है. पतित दुनिया में भगवान ने याद करी छे, बाकी सतयुग त्रेता में कोई एमने याद करता नहीं. केम? कारण के त्यां भगवान की एमने जरूरत ज नहीं. જ્યારે પતિત બન્યા, દુઃખી બન્યા, રાવણની જેલમાં પુરાયા, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. सीता पुकारती थी हे राम. बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है. राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं. અને સીતા બી કોઈ ત્રેતા વાળી સીતા રાવણના ચંગુલોમાં નથી ફસાયેલી. અત્યારે હરેક આત્મારૂપી સીતાઓ રાવણની જંજીરોમાં ફસાઈ છે. ત્યારે પરમાત્મા રામને યાદ કરે છે. आत्मा पुकारती है अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं क्योंकि सुखधाम में रहेंगे. અત્યારે આત્મા પરમાત્માને પુકારે છે. બાકી સતયુગ ત્રેતાયુગ તો કોઈ ભગવાનને યાદ નથી કરતું, કારણ કે સુખધામમાં હોઈએ છીએ. इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते नहीं. वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा. आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है. दुनिया वाला तो शू कहे छे? आत्मा सो परमात्मा, माने अपनी आत्मा परमात्मा में लीन थई जाए छे. तो बाबा कहते
बाप समझाते आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा केवी छे? अजर अमर अविनाशी छे के जे कोई परमात्मा में लीन नहीं थई जती। आत्मा वस्तु अलग छे, परमात्मा अलग छे। एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। हाँ, बाबा કહે છે કળિયુગમાં આત્મા કેવી બની ગઈ છે હરેકની? પતિત તમો પ્રધાન, અને બાબા આવીને ફરી સતો પ્રધાન પવિત્ર બનાવે છે। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। बाबा केम आवे छे? पतित दुनिया ने पावन बनावा माटे। उनको कहते ही है गॉड फादर। परमात्मा माटे शू कहेवाय छे? गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है। यह ड्रामा भी अविनाशी है। परमात्मा भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, तो ड्रामा पण अविनाशी। यह बच्चे तुम जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। हाँ, बाबा કહે છે આ હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફી તો રિપીટ થતી જ જાય છે, કારણ કે આપણે સૂર્યવંશીમાંથી ચંદ્રવંશી, ચંદ્રવંશીમાંથી કેવા બન્યા? વૈશ્યવંશી। તો એ બનતા જ રહીએ છે, કારણ કે રિપીટ થતું જાય છે। 4 યુગોમાં આપણું ચક્ર ફરતું જ રહે છે। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न को कहा जाता है। આજે બાબાએ અલગ પ્રકારનું રહસ્ય સ્પષ્ટ કર્યું કે ત્રેતાની જે આત્માઓ છે એમને દેવી દેવતા કહી શકાય નહીં, કારણ કે દેવી દેવતા કોને કહેવાય? જે 16 કલા સંપન્ન હોય એમને દેવી દેવતા કહેવાય। તો ત્રેતામાં તો 14 કલા થઈ ગઈ। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वह मजा नहीं रहता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे, थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। बाबा કહે છે પહેલા બધું નવું નવું હોય છે, પણ થોડાક વર્ષો પાસ થયા તો પછી નવું ના કહેવાય। ऐसे हर चीज होती है। यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। आ दुनिया भी शू छे? एक मांडवो छे। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है। इसका कोई अंत नहीं। इनकी एंड कहाँ है? वह निकाल नहीं सकते। कोई आकाश नो अंत मेळवी शकतो नहीं। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड नहीं हो सकती। यू साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। बाबा કહે છે કોઈ આકાશનો અંત મેળવી શકતું નથી, તો એવી રીતે બ્રહ્મ મહાતત્વમાંના પરમધામનો બી કોઈ અંત નથી,
કારણ કે સાયન્સવાળા સાયન્સનો ઘમંડ બતાવવા માટે અંત મેળવવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ છે જ બે અંત। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। બ્રહ્મ તત્વનો અંત નથી, મોટી જગ્યા છે, પણ આપણને કેટલી જગ્યા જોઈએ? ત્યાં તો આત્મા જ રહે છે, તો થોડી જગ્યામાં રહે છે। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी चाहिए ना। અને અત્યારે તો ધરતી ઉપર મનુષ્ય વધી ગયા, કારણ કે શરીર છે, તો શરીરને રહેવા માટે મકાન જોઈએ, ખાવા માટે खेती भी करवी જોઈએ, तो खेती भी જોઈએ। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। कहाँ? परम धाम में। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएंगी? वहाँ तो अभोक्ता है। ત્યાં આત્માને ખાવા માટે કોઈ खेती કરવાની જરૂર નથી પડતી। खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। बाप समझाते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है, तो यह नशा होना चाहिए। बाबा आ ज्ञान एक ज वार आपे छे, पछी पुनः 5000 वर्ष पछी बाबा फरीथी आपसे। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे। શું કહે છે? આજથી 5000 વર્ષ પહેલા આપણે બાબા પાસે આવ્યા હતા। बाप ने इसमें प्रवेश किया था। बाप कहते हैं, जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। તો કહે છે જેવી રીતે તમારે બી શરીરને ધારણ કરવું પડે છે પાર્ટ ભજવવા માટે, એવી રીતે હું બી શરીરનો આધાર લઉં છું, નહીં તો पार्ट कैसे बजाऊं? शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? शिव बाबा केवा छे? निराकार, तो एमनी जयंती केवी रीते? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे जाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। बाबा शू करे छे? बाबा आवीने आपने राजयोग सीखवाड़े छे, मनुष्यमांथी देवता बनावा माटे आ राजयोग सीखवाड़े छे। माटे तो बाबाने पतित पावन ज्ञानना सागर कहेवाय छे, कारण के बाबानी अंदर मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्षना आदि मध्य अंतनु संपूर्ण ज्ञान छे। तुम बच्चे समझते हो, बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए। बाबा शू समझावे छे? बाबा कहे छे ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना है, मने एमना कर्तव्यों ने भी समझवानी जरूर छे। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है, बाबा ने तो समझिया छे ने। हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी भी अलग अलग होती। हर एक की महिमा अलग अलग छे, हर एक नु कर्तव्य अलग अलग छे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है, यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। જેવી રીતે શરીર અલગ અલગ હોય તો જેમને પદ અલગ અલગ મળે, તો પદ અલગ અલગ મળે તો એમના કર્તવ્ય બી અલગ અલગ થઈ જાય છે। તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય તો એમનું કર્તવ્ય અલગ, પ્રેસિડેન્ટ હોય તો એમનું કર્તવ્ય અલગ।
तो आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल न सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। शिव बाबा केवा छे? निराकार, एमने भी बोलवा माटे शरीरनो आधार लेवो पड़े छे। इसीलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो बिंदी है, उनको मुख कहाँ से आया? गौमुख से गंगा निकली बताते हैं ना। तो बाबा के छे शिव बाबा तो बिंदी छे, तो પછી એમના મુખ ક્યાંથી આવ્યું? तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। तो ब्रह्मा तननी अंदर आवीने बेसी ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान गंगा ने वहावे छे। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावनाओ हमको इस दुख से छुड़ाओ। बाबा ने शू कहीने याद करे छे? हे पतित पावनाओ हमको इस दुखों से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है। शिव बाबा कौन छे? मोटामा मोटा सर्जन, डॉक्टर। उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सर्व पतित आत्माओं ने पावन बनावा वाला कौन छे? एक सर्जन शिव बाबा अपना डॉक्टर छे। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? सतयुग में हरेक आत्माओं निरोगी होय छे। तो बाबा के छे कि सतयुगना जे लक्ष्मी नारायण छे ए एकदम निरोगी होय छे। तो एमने एवा कर्म कोने सीखवाड़े कि निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग होता ही नहीं। सतयुग में कोई दुख रोग के पीड़ा होती ज नथी कि सतयुग में कोई कर्म कूटવું નથી પડતું कि हाय हाय आ શું થઈ ગયું, આવું કેમ થયું। कोई दुखना रोदना भी नहीं होता। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। सतयुग त्रेता में दुखनी कोई बात ज नहीं। कोई पाप कर्म करतुं ज नहीं कि कर्मों हिसाब किताब होय। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। कर्म अकर्म माने सतयुग में आपणे जे कर्म करीए छीए केवा होय छे? अकर्म होय छे कि जेनुं आपणे कोई फळ भोगववानुं નથી હોતું। અને જે કળિયુગમાં કર્મ કરીએ છીએ આપણા વિકર્મ બની જતા હોય છે। તો બાબા કે જે સતયુગમાં કોઈ દુઃખની વાત જ નથી, કારણ કે કર્મોની કોઈ ભોગના જ નથી હોતી। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाते हैं। आत्मा की कला कम थई तो सृष्टिना प्रकृतिना 5 तत्वों भी कला कम थाय छे। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी से ही बाप के श्रीमत पर
ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाए खानी न પડે. બાબા કહે છે બાબાની શ્રીમત પર ચાલીને એવા શ્રેષ્ઠ કર્મ કરો કે ફરી ક્યારે કર્મો કૂટવા ન પડે, માના કર્મોના દુઃખ ભોગવવા ન પડે. કારણ કે જે બી કર્મ કરીએ છીએ એની સજા તો ભોગવવી પડશે. તો કર્મોની સજાઓથી બચવા માટે બાબાની શ્રીમતનું પાલન કરો. રવિવારની મૂલીમાં બી બાબાએ કહ્યું ને, આજ્ઞાકારી બનવાનું છે, બાબાની હરેક આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું છે. નંબર 1 આજ્ઞાકારી બનો. दूसरी पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है, यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंस्युबल बनना है. बाबा કહે છે આ શરીર भी विनाशी છે તો આ વિનાશી શરીરનો भी નશો નહીં રાખો. वरदान, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव. फरमान माना बाबाની આજ્ઞાઓ. તો આજ્ઞાની પાલના દ્વારા આપણા અરમાનો માના ઈચ્છાઓ, ખ્વાહિશો તો એકદમ ખત્મ કરી દેવાની છે. તો ખ્વાહિશ, ઈચ્છાઓ ખતમ ક્યારે થશે? જ્યારે બાબાની આજ્ઞા, બાબાના ફરમાનો ઉપર ચાલીશું તો માયા પ્રૂફ બની જઈશું. अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो. અમૃત વેળાથી રાત સુધીની બાબાએ જે દિનચર્યા આપી છે તો એ દિનચર્યાની અંદર બાબાના જે ફરમાન મળ્યા છે, બાબાની જે આજ્ઞાઓ છે એના પ્રમાણે પોતાની વૃત્તિ, દ્રષ્ટિ, સંકલ્પ, સ્મૃતિ, સર્વિસ માના સેવા, સંબંધ, સંપર્ક હરેકની અંદર બાબાની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાનું છે. જો હર સંકલ્પ, हर कदम फरमान को पालन करते हैं उनके सब अरमान खत्म हो जाते. माना बाबा બધા જ અરમાન પૂરા કરી દે છે જે બાબાને ફરમાન ઉપર ચાલે છે એમના. अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो जरूर कोई न कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है. बाबा કહે છે અગર અંદરમાં કોઈ ન કોઈ અરમાન છે તો સમજો कि फरमाननी पालना नहीं થઈ રહી. तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे. स्लोगन, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना यही स्वचिंतन है. પોતાની સૂક્ષ્મ કમજોરીઓનું ચિંતન કરીને એ કમજોરીઓને સમાપ્ત કરી દેવી તો બાબા કહે છે આ જ સ્વચિંતન છે. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.